Hello everyone. Welcome back to our virtual class. Today we are start revision of national income, seventh chapter. First of all, introduction. What is national income? National income occupies an important uh, place in economic theory. National income occupies an important place in economic theory. इकोनॉमिक थ्योरी में नेशनल इनकम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट थियरी है. National income is one of the important subject matters of macroeconomics. What is macroeconomics? Macroeconomics study the whole income of a nation. So macroeconomics study the aggregate income, aggregate production, aggregates. Macroeconomics study the aggregates. So national income. What is national income? National income is the total income of nation. So it is one of the important subject matters of macroeconomics. Then next is national income is a composite measure of all economic activities such as production, distribution, exchange and consumption. नेशनल इनकम में जो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जैसे कि प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, इनका एक ही इकट्ठा करके मेजर किया जाता है. नेशनल इनकम मीन्स ये सब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको कंपोजिट करके मेजर किया जाता है, राइट. नेक्स्ट इट इज एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अ कंट्री. ये नेशनल इनकम एक इंडिकेटर है, ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर है. किसका इंडिकेटर है? तो इकोनॉमिक वेलफेयर, पीपल, जितने भी कंट्री के पीपल हैं उनका इकोनॉमिक वेलफेयर का इंडिकेटर नेशनल इनकम है. देन मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी economy. Modern economy is a money economy. Hence, national income of a country is expressed in terms of money. जो मनी में जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो मनी में एक्सचेंज कर सकते हैं, वो ही नेशनल इनकम में मेजर किए जाते हैं तो काउंट किए जाते हैं. सो मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी. The next is the total economic performance of a nation is evaluated with the help of national income data. इकोनॉमिक नेशन का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो कैसे इवेल्युएट कैसे किया जाता है? नेशनल इनकम डेटा जो होता है उससे वो इवेल्युएट किया जाता है. द बेसिक पर्पज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज टू मेजर द एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम. The basic purpose of national income accounting is to measure the aggregate output, मतलब total output, total income, total production, जो total है, aggregate values है, वो measure किए जाते हैं. National income is the flow of goods and services produced in an economy during a year. जो एक पर्टिकुलर ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर में जितने भी प्रोडक्शन गुड्स के प्रोडक्शन हुए, जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उनका जो फ्लो है वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है. इन शॉर्ट, व्हाट इज नेशनल इनकम? द टोटल इनकम ऑफ नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम. ओके. Then we study features of national income. First is macroeconomic concept. As we learn, macro means aggregate values or aggregate study or total study of the nation. So national income is the macroeconomic concept. The national income is a study of macroeconomics concept. It is the aggregate income of all goods and services produced in a country during a year.
Year means financial year. It provides a clear picture of a country's economic performance during a particular ईयर. मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है. इसमें सब जो 1 ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनका एग्रीगेट टोटल स्टडी किया जाता है. Then the second is value of only final goods and services. Value of only final goods and services. So in order to avoid double counting, okay, in order to avoid double counting while estimating national income, we include only value of final goods. When estimating national income, we include only the value of final goods and services and not the value of intermediate goods or raw material. For example, while estimating the production of sugar, okay, while estimating the production of sugar, we not include, or there is no need to take the value of sugar cane as it is already included in the price of sugar. Sugar is a final good and sugar cane is a intermediate good and sugar is a final good. In national income there is only measure final goods, only measure the final goods, not include the intermediate goods. So as why? Because as it is already included in the price of sugar. What is double counting? What is double counting? It means estimating the values of goods and services more than one. That is double counting. For example, another example, we take one example. Milkman. Then value of output, intermediate good, value of output, intermediate good, and value added. Milkman produce, take one milkman sell milk, okay, for 50 rupees, okay, 50 rupees to shopkeeper. मतलब मिल्कमैन ने मिल्क कितने रुपीस को शॉपकीपर को दिया है? 50 रुपीस को दिया है. शॉपकीपर क्या करेगा? उसके ऊपर प्रोसेस करेगा. सपोज पनीर बनाएगा तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर जो 50 रुपीस का मिल्क लिया उसके ऊपर प्रोसेस करके उसका पनीर बना के रेस्टोरेंट ओनर्स जो है, रेस्टोरेंट ओनर को 80 रुपीज में सेल करेगा. कितने रुपीज को सेल करेगा? 80 रुपीज को, क्योंकि उसने मिल्क के ऊपर प्रोसेस किया, राइट. तो मिल्कमैन ने कितने रुपीज को दिया है? शॉपकीपर को 50 रुपीज को. शॉपकीपर उसके ऊपर प्रोसेस करके या तो पनीर बनाया, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि पनीर बनाया उसने, तो उसने पनीर बना के वो रेस्टोरेंट ओनर को कितने रुपीज में सेल किया? 80 रुपीज में. फिर रेस्टोरेंट ओनर जो है उसने वो पनीर की सब्जी बनाई तो वो सब्जी बना के कितने रुपीज में सेल कर रहा है? 150 रुपीज को सेल कर रहा है, राइट. मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या थी? मिल्क था. ओरिजिनल गुड़ क्या था? मिल्क था. उसकी प्राइस क्या थी? 50 रुपीज. शॉपकीपर को मिल्कमैन ने 50 रुपीज में वो मिल्क सेल किया. शॉपकीपर ने उसके ऊपर प्रोसेस किया और वो मिल्क का प्रोसेस करके वो 80 रुपीज को रेस्टोरेंट ओनर को सेल किया. फिर रेस्टोरेंट ओनर ने भी उसके ऊपर प्रोसेस किया और वो 150 रुपीज को सेल किया. अभी यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड क्या था? मिल्क था. सॉरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या थी? 50. सो इंटरमीडिएट गुड भी 0 था. लेकिन मिल्कमैन ने शॉपकीपर को कितने रुपीज में दिया था? 50 रुपीज. तो इंटरमीडिएट गुड कितना हुआ? 50 रुपीज.
शॉपकीपर ने रेस्टोरेंट ओनर को कितने रुपीज में दिया था? 80 रुपीज, राइट, 80 रुपीज में दिया था। तो ये इंटरमीडिएट गुड कितने रुपीज का हुआ? 80 रुपीज का। अभी वैल्यू कितनी ऐड हो गई इसमें? मिल्कमैन की वही है, वही सेम वैल्यू थी 50 रुपीज, लेकिन शॉपकीपर ने उसमें कितनी ऐड की? 30 रुपीज, 30 रुपीज वैल्यू ऐड कर दिया। उसके बाद रेस्टोरेंट ओनर ने उसमें कितने रुपीज ऐड कर दिए? 70 रुपीज ऐड कर दिए। सपोज हम अभी यहाँ पे जो वैल्यू एडेड है उसकी अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 150 रुपीज। तो 150 रुपीज क्या हुआ? दैट इज अ फाइनल गुड, फाइनल वैल्यू। ये जो मिल्क था उसकी फाइनल वैल्यू क्या कहाँ तक आ गई? 150 रुपीज। तो नेशनल इनकम में ये डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए कि अगर सब्जी है तो सब्जी की ही प्राइस रहेगी, उसके अंदर फिर से, और क्योंकि सब्जी बनाने के लिए मिल्क से पनीर, पनीर से फिर सब्जी बनाई थी, तो ये सब वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, तो वो फिर से इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसलिए दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, ये अवॉइड किया जाता है नेशनल इनकम में। नेक्स्ट है नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेट एग्रीगेट वैल्यू, national income includes net value of goods and services produced and does not include depreciation cost। क्या करते हैं नेशनल इनकम में? क्या इंक्लूड होता है? नेट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट वैल्यू, या एग्रीगेट मीन्स नेट, नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced and does not include depreciation cost। What is depreciation? The monetary value of an asset decrease over time due to use, wear and tear, right? मतलब जो वैल्यू एसेट है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो वो जो डिक्रीज होने वाली वैल्यू है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता, right? This decrease is measured as depreciation, that is called depreciation। Like machinery, equipment, currency are some examples of assets that are likely to depreciate over a specific period of time। मतलब जैसे कि बाइक है, बाइक लिया है, तो ये साल में अगर बाइक आप परचेस करते हो या तो वो प्रोडक्शन मार्केट में आया। फाइनल गुड किसे कहते हैं? कि जब कस्टमर या तो जो कंज्यूमर है वो गुड यूज करने के लिए, वो चीज जो है, वो गुड्स जो है वो कस्टमर को यूज करने के लिए जब रेडी है तो दैट इज फाइनल गुड। और जो वो गुड्स अगर मार्केट में आती है तो वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो उसके बाद जो यूज करते हैं, यूज करके उसका डिप्रिसिएशन होता है, जैसे कि हॉर्न खराब हो गया उस बाइक का तो रिपेयर किया, उसके लिए हमने खर्चा किया, ब्रेक फेल हो गया उसका खर्चा किया, सीट खराब हो गया उसको ना रिपेयर किया, तो उसके लिए जो हम खर्चा करते हैं बाद में, तो वो दैट इज अ डिप्रिसिएशन कॉस्ट। तो वो जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, while calculating national income the net income from international trade is included। जो इंटरनेशनल ट्रेड से इनकम आता है, जो नेट इनकम आता है तो वो इंक्लूड होता है। दैट इज फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स एंड फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन ट्रांजेक्शन। If the net income is negative, then that amount is deducted from national income। मतलब जैसे एक्सपोर्ट वैल्यू और इंपोर्ट वैल्यू, ये जो दो वैल्यूज है एक्सपोर्ट वैल्यू और इंपोर्ट वैल्यू, इसका डिफरेंस जो है वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, या तो रिसिट और पेमेंट फ्रॉम फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन ट्रांजेक्शन। फॉरेन ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन से जितने भी पैसे इनकम मिलता है या तो जाता है, इसका जो डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस जो है वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। सिर्फ एक्सपोर्ट वैल्यू काउंट नहीं होती या तो सिर्फ इंपोर्ट वैल्यू काउंट नहीं होती, एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू का डिफरेंस जो है वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज फाइनेंशियल, विच इज द फाइनेंशियल ईयर?
national income is always expressed with reference to time period, that is generally a financial year, which in India is from 1st April to 31st March of every year. Financial year कौन सा है? 1st April to 31st March. That is a financial year. Next is flow concept. What is flow concept? National income is a flow concept, flow of goods and services produced in the country during a year. जो ये फाइनेंशियल ईयर है, तो इस ईयर में जितने भी गुड्स एंड जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, तो उसका जो फ्लो है, तो वो नेशनल इनकम में स्टडी किया जाता है. It includes only those goods and services which are actually produced. इस 1 ईयर में एक्चुअली जो प्रोड्यूस हुआ है, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए, वो ही इसमें काउंट हो जाते हैं, मेजर किए जाते हैं. नेक्स्ट है मनी वैल्यू. व्हाट इज मनी वैल्यू? National income is always expressed in monetary terms. It represents those goods and those services which are exchanged for money. मनी से जो एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो ही नेशनल इनकम में इंक्लूड है, जो मनी से एक्सचेंज कर सकते हैं. तो दैट गुड्स एंड दैट सर्विसेज ओनली इंक्लूड इन नेशनल इनकम. Okay. Next point is circular flow model. As you are see in your book that model, the circular flow model demonstrate how money moves through society, right? How money flow or money moves through society. Money flows from producers to workers as wages and flows back to producers as payment of that products. मतलब firms क्या करते हैं कि firms फैक्टर्स जो गुड्स है वो प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को, उसके बदले हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं? हाउस होल्ड को क्या मिलता है उसके बदले? पेमेंट मिलता है, राइट? पेमेंट मिलता है. So in short, an economy is an endless circular flow of money. Endless circular flow of money. For that reason, the model is also referred to as the circular flow of income model. Okay, that is also called a income model. The circular flow means the unending flows of production of goods and services. अनएंडिंग ये सर्कुलर फ्लो है, इसमें एंड ही नहीं है. जो फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता रहता है, हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं, ये फ्लो चलता रहता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज एन इकोनॉमी. इनकम भी हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी हो रहा है, ये सब फ्लो ये सर्कुलर में चलता रहता है. It shows the redistribution of income in a circular manner between the production unit and household, between the firms and household. Firms are production units. In other words, we can say that circular flow means cycle of generation of income and its distribution among the factors of production. क्या ये साइकिल इनकम जनरेट कर रहा है? ये जो फ्लो है वो इनकम जनरेट कर रहा है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. We begin with a simple hypothetical economy where there are only two sectors, the household sector and firms, right? We begin with a simple hypothetical economy where there are only two sectors, that are households and firms, two sectors. What the firm do, the factors of production flow from the household, factors of production flow from the household to the firms.
factors of production that are land, labor, capital, entrepreneurs. हाउसहोल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो है वो फर्म्स को जाता है. द फर्म्स यूज these factors of production, right? Firms use these factors to produce goods and services required by the household. जो हाउसहोल्ड को गुड्स और सर्विसेज चाहिए उसका प्रोडक्शन फर्म्स करते और वो सर्कुलेट होता है. Thus, goods flow from the households to the firms and from the firms back to the household. It is called product flow. मतलब क्या? प्रोडक्शन, ये हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म्स को, उसके बदले फर्म्स क्या करता है, उसका यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हाउस होल्ड को देते, राइट? दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट फ्लोज. मनी फ्लो, दो फ्लो है, प्रोडक्ट फ्लो एंड मनी फ्लो. Money flows from the firms to the household in the form of factor payments. Okay, factor payments such as factor payment क्या क्या है, such as rent, wages, interest and profit. These are the factor payments. These are land, labor, capital and land को क्या मिलता है, rent, लेबर्स को वेजेस मिलते, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट. तो goods, these goods, money flows from the firms to household, to the firms, and from the firms back to the household. Money flows from the firms to the household in the form of factor payments, such as rent, wages, interest and profit. Household use this income to purchase goods and services. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. हाउस होल्ड क्या करता है, जो पेमेंट मिला है हाउस होल्ड को, उस पेमेंट से क्या करता है, फर्म से जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो परचेज करता है. दैट इट इज कॉल्ड मनी फ्लो. Okay, so I hope you are understand this circular flow of national income and features of national income.